Good morning, student. Today we are discussing about second chapter, form of business organization. Almost every year, every country consists of two type business sector, private और public. जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बिजनेस के अंदर प्राइवेट कंपनियां भी होती है और पब्लिक कंपनियां भी होती हैं. प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो किसी एक इंडिविजुअल बंदे या किसी दो चार बंदों के साथ मिलकर चला जाता है. और पब्लिक सेक्टर को कौन ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट ऑपरेट करती है. प्राइवेट सेक्टर बिजनेस आर ऑपरेटेड एंड रन बाय इंडिविजुअल एंड पब्लिक सेक्टर बिजनेस आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट. टाइप ऑफ बिजनेस: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी. सबसे पहले बात करेंगे हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में. इट इज आर द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर. यह सबसे पुराना बिजनेस स्ट्रक्चर है. इट इज आल्सो नाउन एज द सोल ट्रेडर और सिंप्लीफाई ए प्रोप्राइटरशिप. Sole proprietorship is a business owned by one person. The owner receives all profit subject to taxation specific to the business and has unlimited responsibility for all those lose and debates. Every asset of the business is owned by the proprietor and all debate of business are also for the proprietor. The business are so common since there are so little legal requirement to set up. First, they must register business name with registrar of business name. The owner must register with the send annual account of to the government tax office. They must obey all basic law for trading and commerce. इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सबसे पहले ओनरशिप. द बिजनेस इज ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल. सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ एंड कंट्रोल. द बिजनेस ओनर कंट्रोल द मैनेज एंड प्रोप्राइटरशिप वाइल क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस. थर्ड वन, अनलिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड. Thus the private property of the owner is at risk. It is liable for a business obligation in the event of business losses. Fourth one, finances. Finance, the necessary capital to run the business is provided by the sole owner. Fifth one, no profit sharing. The entrepreneur enjoy the entire profit earned in this form of business is as there are no other person to share the profit. Secrecy, since all the decisions are usually to be taken by entrepreneur himself, so secrecy is maintained. Seventh one, relationship with customer. The sole proprietor try to keep good relationship with his customer. The customer are generally personally known to proprietor and their order are higher valued. अब हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में. There are some advantage. First, there are few legal formality required to operate the business. Sole proprietor can take quick decision on the various issue relating to business and accordingly promote action can be taken. 100% profit own. The owner has freedom to change working or whom to employ. Owner has personal contact with customer. Owner is own boss and has total control over the business. इसके अंदर आपको अभी पता लग ही गया होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी खुद ओनर का होगा. वो कभी अपना टाइम काम करने की टाइमिंग चेंज कर सकता है और उसका कोई बॉस नहीं, वो खुद का बॉस खुद होगा. और इसके रिलेशन कस्टमर के साथ अपने आप पर्सनल रिलेशन अच्छे बन जाते हैं. और इसका एक डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे. अब
अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर बिजनेस डेबिट, द सिंगल ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ऑल डेबिट एंड डैमेज ऑफ देयर बिजनेस। मतलब क्या, अगर बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत घाटा आता है तो वो अकेले को ही सहन करना पड़ेगा। लिमिटेड फाइनेंस, फाइनेंस भी बहुत कुछ लिमिटेड मात्रा में मिलेगा, कम। कैपिटल, बिजनेस विल रिमेन स्मॉल, और बिजनेस हमेशा छोटा ही रहेगा। व्हेन द ओनर डाई, द कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस इज डिफिकल्ट बिकॉज ए न्यू ओनर मस्ट typically accept all liability of the business. The owner normally spend long hours working. ओनर को ज़्यादा टाइम काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप, आप सभी को पता है पार्टनरशिप क्या होती है। सबसे पहले अगर पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखें तो ऐसे, ए पार्टनरशिप is a type of business entity in which partner owners share with each other the profit or losses of the business undertaking in which all have invested। पार्टनरशिप के अंदर क्या है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन साथ में मिलके कोई बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, बनाते हैं। उसके अंदर जितना प्रॉफिट हो और लॉस हो वो सभी अपने आप शेयर करते हैं, ठीक है ना। इन दूसरे वर्डों में क्या कहे, ए पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन हु कैन जॉइन टू कैरी ऑन ए ट्रेड और बिजनेस। इसका भी मतलब ये है, पार्टनरशिप क्या होती है, रिलेशनशिप होता है दो पर्सन के बीच में, दो और दो से ज़्यादा से, जो किसी भी बिजनेस को कैरी करने के लिए ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज़ डिफाइंड एज पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब हम बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। पार्टनरशिप के फीचर क्या क्या है। फर्स्ट, इन ए पार्टनरशिप देयर शुड बी एट लीस्ट टू पार्टनर। हमको पता ही है अगर कोई भी पार्टनरशिप होगी उसके अंदर कम से कम टू पार्टनर तो होंगे, टू पर्सन। तो टू से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट टू पर्सन की होगी। सेकंड, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर को बराबर की सोल पार्टनरशिप की तरह काम करने की इजाज़त होगी, लायबिलिटी होगी। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट हिज शेयर इन द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों पार्टनरशिप को इक्वल पार्टनरशिप शेयर करनी होगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू एट प्लेजर ऑफ द पार्टनर। Next, according to the agreement, every partner contribute his share. It is not necessary the partner should contribute equally. हाँ, पार्टनरशिप के अंदर शेयर बनाए जाते हैं, जैसे कोई 50% का शेयर खरीद लेता है, कोई 30 का, कोई 70 का। ऐसे 100% से अगर तीन पार्टनर है तो 30 के कोई खरीद रहे हैं, एक 40 का खरीद रहा है, दो 30 के खरीद रहे हैं। अगर एक 50 का खरीद रहा है तो दो 20 और 30 का खरीद रहे हैं। ऐसे शेयर होते हैं और सबको इक्वली कंट्रीब्यूट करते हो। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड मस्ट कॉन्फिडेंस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोनों पर्सन के अंदर, और म्यूचुअल कोऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोऑपरेशन नहीं है तो पार्टनरशिप हम कभी भी नहीं चलेगी। पार्टनरशिप करने के लिए लायबल बनना पड़ता है और कोऑपरेशन करना ही पड़ता है। One partner cannot transfer his share to any other person without consent of the exiting partner। अगर कोई पार्टनर अपने शेयर बेचना चाहे तो अपने आप नहीं बेच सकता जब तक दोनों पार्टनर आपस में बातें ना कर लें। It is dissolved if a partner leave, die or declared bankrupt। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के एडवांटेज के बारे में।
देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट, पार्टनरशिप का एडवांटेज क्या है? पार्टनरशिप कैन बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। देयर इज नो लाइसेंस फी, रजिस्ट्रेशन फी, for the formation of this type organization, so it is easy to set up. Second, decision making can be much easier with more brain to think about problem. हाँ, आप सभी को पता है अगर पार्टनर ज़्यादा होंगे, कोई प्रॉब्लम है तो सोचने वाले भी ज़्यादा होंगे, सोचने वाले ज़्यादा होंगे तो किसी के दिमाग में तो कोई अच्छी बात आएगी, तो डिसीजन लेने में आसानी हो गई। थर्ड, मोर कैपिटल कैन बी ब्राउट इनटू द बिजनेस, और बिजनेस के अंदर पैसा भी ज़्यादा लगाया जाएगा। अगर ज़्यादा पार्टनर हो गए तो ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। इन ए पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर शेयर द बिजनेस रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 3 पार्टनर एंड द फर्म सफर ए लॉस ऑफ 12,000 ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड, then all partner may share it and individual burden will be 4,000 only। आपको पता ही है अगर पार्टनर एक फर्म में 3 पार्टनर है, अगर उसमें 12,000 रुपये का लॉस आ जाए तो तीनों पार्टनर को क्या आएगा? 4,000 रुपये का। तो इससे क्या होगा? बर्डन घटेगा इंडिविजुअल पार्टनर का, अकेले का। ये सबसे अच्छा फ़ायदा है इसका। द पार्टनर आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, each of them has equal right to participate in the management of business। 6.1 this form of organization is free of following restrictions: to call the meeting, to audit the annual account, to publish certain statement, submission of report to registrar office। अब जैसे हमने किसी भी चीज़ के एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी कुछ होंगे। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऑल द पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिबेट ऑफ द फर्म एंड इफ बिजनेस गोज बैंकरप्ट। सेकेंड, देयर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ एक्सिस्टेंस, पार्टनरशिप इज डिजॉल्व्ड इफ वन ऑफ द पार्टनर डाई और रिजाइन or become bankrupt। Third one, the total number of partner cannot exceed 20. The capital to be raised is always limited। In the partnership firm, a partner cannot transfer his share to interest or to outside without consent of other partner। ठीक है, आप सभी को पता लग गया, ये इसके डिसएडवांटेज आ गए। अब हम बात करते हैं पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर। ए पर्सन हु एक्टिव इंटरेस्ट इन द अफेयर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर। ही कंट्रीब्यूट हिज शेयर इन द in the capital and is also liable to pay to the firm। सॉरी, अभी आप सभी को ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। इस पार्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दिख नहीं रहा ना, तो इसके लिए मुझे दोबारा से एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। तो उस पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करें।